नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सहस्रावणं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जतु शासनम नमः समयिसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते। अध्यात्म प्रवर्तन तत्व સમયસાર કળશ ટીકા નંબર 271 ઉપરના પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચન શરૂઆતની ત્રીજી લીટી 169 પાના ભગવાન કેવળી લોકાલોકને જાણે છે એમ નથી એમ અહીં કહે છે। ભગવાન કેવળી લોકાલોકને જાણે છે એમ નથી એમ અહીં કહે છે। ત્યારે કોઈ કહે છે શું ભગવાન લોકાલોકને નથી જાણતા? આત્મા જ્ઞાયક છે તો 6 દ્રવ્યો એના જ્ઞેય છે કે નહીં? केवल ज्ञानना 6 द्रव्यों नहीं छे के नहीं? कोई वળી કહે છે નિશ્ચયથી નથી વ્યવહારે છે। લોકાલોક છે એ કેવળી ભગવાનને જ્ઞેય નથી, કઈ નહીંથી કે નિશ્ચય નહીંથી નથી જ્ઞેય અને વ્યવહાર નહીં છે એમ કોઈ કહે છે નૈવિક્ષાથી। નિશ્ચય નહીંથી નથી બરાબર છે પણ વ્યવહારને તો લોકાલોકને જાણે છે ને એમ એક પક્ષ છે। વ્યવહારે છે, અરે ભાઈ વ્યવહારે છે એનો અર્થ શું? એ જ કે એમ છે નહીં એનો અર્થ વ્યવહારે કેવળી ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે એટલે કે એમ છે નહીં। પોતાનામાં પોતાની જ્ઞાન પર્યાયમાં લોકાલોકનું જ્ઞાન પોતાના કારણે થાય છે કે લોકાલોક જ્ઞાનમાં જણાય છે એ લોકાલોકને કારણે લોકાલોકનું આ જ્ઞાન થતું નથી પણ પોતાના કારણે જ્ઞાનની પર્યાય એવી પ્રગટ થાય છે કે જેમાં લોકાલોક જણાય છે। પોતાનામાં પોતાની જ્ઞાન પર્યાયમાં લોકાલોકનું જ્ઞાન પોતાના કારણે થાય છે। તે જ્ઞાન પર્યાય પોતાનું જ્ઞેય છે પણ લોકાલોક જ્ઞેય નથી। બહુ ઝીણી વાત, આ તો ધીરાના કામ બાપુ। આ કાંઈ એકદમ ઉતાવળથી મળી જાય એવી વસ્તુ નથી। એટલો જબરજસ્ત ખુલાસો પોતાને કેવળ જ્ઞાન થયું નથી છતાં કેવળ જ્ઞાનનું શું સ્વરૂપ છે એ સાધકને ભાસે છે। કેવળ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ લખી નાખ્યું, કહી દીધું। પોતે તો શુદ્ધ જ્ઞાની છે, કેવળ જ્ઞાન થવાનું બાકી છે છતાં કેવળી એ કોને જાણે છે ને કોને જાણતા નથી એનો ખુલાસો કર્યો। હા, કહે છે હું જે કોઈ ચેતના સર્વસ્વ એવી વસ્તુ સ્વરૂપ છું તે હું જ્ઞેયરૂપ છું। એમાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણે આવી ગયા। જ્ઞેય અધિકાર છે ને
ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેય થાય છે ને, પરંતુ એવા જ્ઞેયરૂપ નથી. ચેતના સર્વસ્વ એવી વસ્તુ સ્વરૂપ છું, તેવા જ્ઞેયરૂપ તો છું, પરંતુ એવા જ્ઞેયરૂપ નથી. કેવા જ્ઞેયરૂપ નથી? પોતાના જીવથી ભિન્ન 6 દ્રવ્યોના સમૂહના જાણપણા માત્ર એવા જ્ઞેયરૂપ એવું નથી. ભાવાર્થ આમ છે કે હું જ્ઞાયક અને સમસ્ત 6 દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ તો નથી. મારું જ્ઞેય, મારો આત્મા જ મારું જ્ઞેય છે. મારો આત્મા જ જ્ઞાન, આત્મા જ જ્ઞેય ને આત્મા જ જ્ઞાતા. જ્ઞાતા જ્ઞાનની જ્ઞેય બધું અંદરમાં છે. જ્ઞાન અહીંયા થાય અને જ્ઞેય બહાર રહે જ્ઞાનનું, એમ ન હોય. જુઓ આ શું કીધું કે ચૈતન્ય માત્ર ભગવાન જ્ઞાયકથી ભિન્ન 6 દ્રવ્યોના જાણપણા માત્ર હું નથી. એ 6 દ્રવ્યોને જાણે એટલા જ્ઞાન માત્ર હું નથી. એટલી જ્ઞાન પર્યાય માત્ર હું નથી કે જે 6 દ્રવ્યોને જાણે. એવી જ્ઞાન પર્યાય જેટલો હું નથી. હું તો મારી જ્ઞાનની પર્યાયને જ્ઞેય બનાવીને જાણવા વાળો છું. જ્ઞાનમાં મને મારી જ્ઞાનની અવસ્થા જણાય છે. 6 દ્રવ્યો જણાતા નથી, જ્ઞાન જણાય છે. લ્યો હવે વ્યવહાર, દયા, દાન, રથ આદિનો રાગ જ્ઞેય અને આત્મા જ્ઞાયક એમ પણ જ્યાં નથી. ઓહો, કે છે કે હું જ્ઞાયક અને 6 દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ તો નથી. પણ અંદરમાં વ્રતાદિનો ભાવ, દયાનો, યાત્રાનો ભાવ, ભગવાનની પૂજાનો વિકલ્પ ઉઠે. એનોય જાણવા વાળો હું નથી. એ પણ મારું જ્ઞેય નથી. રાગ જ્ઞેય અને હું જ્ઞાતા એમ નથી. મારે રાગની સાથે જ્ઞાતા જ્ઞેયનો સંબંધ નથી. જ્ઞાતા જ્ઞેયનો સંબંધ મારા આત્મા સાથે છે. હું જ જ્ઞાતા અને હું જ જ્ઞેય. હું જ્ઞાતા અને રાગ મારું જ્ઞેય એમ નથી. જો એમ શ્રદ્ધામાં રહેશે કે હું જ્ઞાતા અને રાગ મારું જ્ઞેય, હું જ્ઞાતા અને કાપડની દુકાન મારું જ્ઞેય, હું જ્ઞાતા અને અલિપ્ત મારો દીકરો મારું જ્ઞેય, હું જ્ઞાતા અને ભગવાન મારું જ્ઞેય, હું જ્ઞાતા અને ગુરુદેવ મારું જ્ઞેય, હું જ્ઞાતા અને તીર્થંકર ભગવાન જ્ઞાનનું જ્ઞેય, કહે છે કે એમ નથી ભાઈ. આ તો અંદરમાં જે વિકલ્પ ઉઠે એ પણ જ્ઞેય નથી. તો પરપદાર્થ એ પ્રમાણની બહાર ગયો એ જ્ઞેય ક્યાંથી હોય? અહીં એનો નિષેધ કરે છે. ફરિયાદથી ચક્ષુ બંધ કરવાનું આવ્યું તો નહીં. દયા, દાન, વ્રત આદિનો રાગ જ્ઞેય અને આત્મા જ્ઞાયક એમ પણ જ્યાં નથી, તો વ્યવહાર કરતા કરતા નિશ્ચય થાય એ વાત ક્યારે પ્રભુ? આહા, ખુદ કરતા કરતા ધર્મ થાય એ વાત સર્વજ્ઞ ભગવાનના મતમાં નથી. અજ્ઞાનીએ કલ્પિત કરી છે વાત. લ્યો આવો અર્થ. પણ આવો અર્થ કેમ કરીને કાઢવો? પોતે ને પોતે પ્રશ્ન કરે છે. ऐसे अर्थ कैसे निकालना कि मैं पर को जानता नहीं हूँ और मैं राग को जानता नहीं हूँ और राग करते करते धर्म नहीं होता है. वो 3 बात आपने कहा, ऐसे हम कैसे निकाल सके ऐसी सूक्ष्म बात कि पर को जानने से धर्म नहीं होता है, राग को करने से धर्म नहीं होता है, राग को जानने से धर्म नहीं होता है. 3 बात आपने कहा, तो ये बात किसे निकाल सकूं? मेरा ज्ञान में तो आती नहीं है कुछ बात. मैं कैसे निकाल सकूं?
પણ આવો અર્થ કેમ કરીને કાઢવો, निकालना अर्थ। आपने जो कहा 3 बात, वो 3 बात मेरे ख्याल में नहीं आती। पहले तो मैं पुण्य करता करता धर्म मानता हूँ। आप कहते हैं पुण्य से तो धर्म होता ही नहीं है, और पुण्य को तो जानता भी नहीं है, और समय शास्त्र को तो जानता नहीं। तो समय शास्त्र पढ़ना के नहीं पढ़ना? आत्मा का लक्ष्य पूर्वक पढ़ लेना, बस लक्ष्य छोड़ना नहीं। बापू तो धंधाમાં નાનામાં નામાના अर्थ કેમ કરીને કાઢે છે? ये निकालता नहीं है। तो वो चोपड़ा देख कर तो कितनी उघराणी है, किसके पास लेना है, बैंक क्या बैलेंस है, कहाँ से माल आया, कहाँ भेजना है, वो तो सब जानता है। उसमें तो तेरी बुद्धि काम करती है। कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, कितना नफा हुआ, ये माल बेचे तो नफा हुआ। बोलो, ऐसी रोटी बनावे तो अच्छी, ऐसे ढोकड़ा बनावे तो अच्छा, ऐसा साग बनावे तो अच्छा, ऐसा ये तुअर का कचौरी बनावे तो अच्छी, ये सब तू जानता है। बुद्धि उधर तो लगती है, इधर लगती नहीं है। वहां तो सब जानते हैं तू, इधर कहते हैं कि ये बात कैसे निकालूं मैं? तो ज्ञानी सब जानते हैं सब बात, अज्ञानी क्या सब जानता है। अज्ञानी जाने तो अज्ञानी कैसे रहे? ज्ञानी जानता है। तो धंधाમાં નામાના અર્થ કેમ કરીને કાઢે છે? ચોપડા જોઈને तो निष्णात हो गया उसमें, उसकी बात तेरे को ख्याल में नहीं आती, तेरी बात तेरे ख्याल में नहीं आती, पर पदार्थ की बात ख्याल में आती है। बापू तो धंधाમાં નામાના અર્થ કેમ કરીને કાઢે છે? એની રુચિ છે ને, એટલે ત્યાં તો ફડાક ફડાક કરી દે છે કે આની પાસે આટલા ને આની પાસે આટલા રૂપિયા બાકી છે, લેણા निकाल दे, हिसाब काटता है, सर्वे भी काट लेता है। एमा टेवाई गयो छे, रुचि है ने, जहाँ रुचि है ત્યાં वीर्य काम करता है, प्रवृत्ति काम करती है। तो आत्मा की रुचि हो तो आत्मा समझ में आ जाए। रुचि रख आत्मा की समझने की, पहली भावना रख कि आत्मा समझना है ये बहु में, ये टेवाई गयो छे। बहार गाम उघराणी जाए અને 50,000 के लाख लई आवे એટલે माने ने हरक करे कि आटला पैसा लई आव्यो। लुधियाना गयो तो आ माल आटलो लई आव्यो ने आ वखते आटलो फायदो थयो, सत्य भर्यो। वो सब आता है। पर बापू ये पैसा क्या तारा छे? ले पैसा नहीं है, तो मिट्टी है, फुटगल है। पैसा तेरा नहीं है भाई, सती से पैसा तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। अने तू शू एने लावी शके छे? कापड़ ने पैसा ने तो शाक तो सुधारी सके के नहीं? नहीं। वो वेफर बना ही सके के नहीं? वेफर नहीं बनाती, किसको जानता भी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही बन जाती है, किया बिना बनता है कार्य। हाँ, उसमें है ना शक्ति बनने की, तो बनती है अपनी शक्ति। अच्छा, वेफर आपो आप बन जाती है। और क्या? अच्छा, वस्तु की शक्ति को पर की अपेक्षा नहीं होती। नहीं होती। अच्छा, कोई कहे ये वेफर किसने बनाया, अच्छे नहीं है, तो क्या करना? हाँ? क्या करना? जानना क्या, उसका नियम परिणाम करना, इसे जानना भी बंद कर देना। अच्छा, लाभवानो तो दूर रहो। અહીં તો કહે છે પૈસા આવ્યા તે મારું જ્ઞેય અને હું જ્ઞાયક। એમ નથી, पैसा मेरा तो नहीं, मगर पैसा आया उसको मैंने जाना, ये भी भूल है तेरी।
पैसा मेरा, वो तो बड़ा मोह है। उसकी ममता तो तेरे को मार देगा, मगर पैसा को मैं जानता हूं, मेरा नहीं है। लड़की को मैं जानता हूं, लड़का को मैं जानता हूं, मेरा कहाँ है? जानना तो मेरा स्वभाव है, इसको जानना तेरा स्वभाव है। तेरा स्वभाव हो तो आनंद आना चाहिए, मगर लड़का लड़की को जानने से आनंद आता नहीं है। इसलिए तेरा ये तेरा तो नहीं है, मगर तेरा ये भी नहीं है, जानने लायक नहीं है वो। ये जानने लायक चीज नहीं है। जिसको जानने से आनंद आवे वो जानने लायक चीज है। जानने लायक तो आत्मा है, उसको जानने से आनंद आता है, पर को जानने से आनंद आता नहीं है। इसलिए मेरा ये न्याय दिया, न्याय। समझ में आया? बस अपने स्वयं की वस्तु को जानने से तो स्वयं में आनंद आना चाहिए। स्वयं को जानोगे तो आनंद आता है, इसका मतलब वो तो स्वयं की है, और जिसको जानने से आनंद नहीं आता वो स्वयं के नहीं है, पर है। अपनी चीज तो नहीं है, मगर मेरा ये नहीं है, वो बात है। उसको ममता करे तो आनंद नहीं आता है, मगर उसको जाने तो भी आनंद नहीं आता है। इसलिए निषेध करके वो जानने लायक नहीं है। व्यवहार जानने लायक नहीं है। गजब की बात है। व्यवहार जानने लायक नहीं है, आत्मा जानने लायक है। सभी का दशा में जड़ी जाता है, वो बात अलग है, मगर जानने लायक नहीं है, वो बात है। जानने लायक नहीं है। जिसको जाने और आनंद आवे तो जानने लायक कहो, ठीक है, मगर पर को जानने से आनंद आज तक आया? बिल्कुल नहीं आया। तो आकुलता ही होती है, आकुलता होती है। एक इंद्रिय होकर पर को जाना, दो इंद्रिय होकर पर को जाना, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगनी, चार गति मेरे करते करते अनंत काल गया। पर को अपना मानने से सुख नहीं, और पर को जानने में सुख नहीं है। जाननहार को जानो तो सुख भी है और ज्ञान भी उत्पन्न होता है। ये अलौकिक, ये अमृतचंद्र आचार्य का कलश है, समय सार का 271 271, उसके पर ये प्रवचन है गुरुदेव का। अध्यात्म रत्नत्रय है ना, उसमें तीनों आ गया है, तीनों। ये 6ला प्रवचन है। जानने लायक नहीं, बोलो व्यवहार नहीं जानने लायक है कि नहीं? अरे 12वीं गाथा पढ़ो, व्यवहार जाने ला प्रयोजना नहीं, क्या नहीं कहते हैं? सभी साथ में लिखा है कि व्यवहार जाने ला। व्यवहार ने अपुतार्थ है, चाणी ने निषेध करवा योगी से। जानने लायक नहीं है, जनित जाता है। जनित जाए वो अलग चीज, और जानने लायक है अलग चीज है। जनित जाए वो चरित्र का दोष है, और जानने लायक है श्रद्धा का दोष है। शुद्ध आत्मा के अलावा और पदार्थ जानने लायक है, ऐसा तो मानता है तो अज्ञान है, श्रद्धा का दोष है। जड़ी जाता है, अमृत स्वरूप में लीन नहीं हो, सविकल्प दशा आती है, व्यवहार जनित जाता है। जो आता है परिणाम वो सहज में जनित जाता है, जानने लायक नहीं है। जानने लायक तो शुद्ध आत्मा है। जनित जाए वो अलग चीज है, जानने लायक है वो अलग चीज है। बिल्कुल श्रद्धा चारित्र का बहुत बड़ा अंतर। हाँ, श्रद्धा चारित्र का अंतर है। स्वरूप में लीन न हो तो जनित जाता है, पर जानने लायक है। मैं बाहुबली भगवान की प्रतिमा का दर्शन करूं तो धर्म होता है, ऐसा नहीं है। जनित जाता है, सहज में आता है, कालक्रम में जानने का जनित जाता है, मगर जानने लायक है। पर पदार्थ साक्षात तीर्थंकर भगवान भी जानने लायक नहीं है। जनित जाता है। तीर्थंकर भगवान का दर्शन हो जाता है, प्रतिमा का दर्शन भी हो जाता है, जनित जाता है।
मगर जानने लायक वो है, वो मर गया। जानने लायक तो एक शुद्धात्मा है, मगर उपयोग आत्मा में नहीं टिकता है, तो भगवान का दर्शन का भाव आता है, यात्रा का भाव आता है, भगवान बाहुबली का दर्शन करने का भाव आता है। पर दर्शन करने लायक कोई है ऐसा है नहीं। सेज में जनित थे, बस राग आया, शुभ राग आया, खाने का पाप राग आया, आ गया। टीवी जान लिया, मगर टीवी जानने लायक है ऐसा नहीं है। जड़ी जाए तो जड़ी जाए, न जड़ी जाए तो कुछ हरकत नहीं अपने को। जानने लायक तो एक मेरा शुद्धात्मा है, जिसको जानने से मेरे को भव का अंत आता है। जिसको जानने से धर्म होता है, भव का अंत आता है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, वो जानने लायक चीज तो एक ही है, बाकी कोई जानने लायक नहीं है। बराबर। देह एक ही होगा तभी प्राप्त हो सकेगा। देह में थोड़ा भी विचलित बना होगा, नहीं देह को प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होगा। ढीला पोचा में काम नहीं होता। श्रद्धा बलवान हो तो काम हो जाता। वही अर्जुन का उदाहरण है कि आंख में टीकी मारनी तो आंख ही मात्र देह है। आंख तो जो है आंख से आगे, आंख की टीकी से बाहर पूरी आंख भी जो है दिखती है तो गया ऐसा है। देखने लायक तो निज परमात्मा है, शुद्धात्मा है। देखने लायक, जानने लायक, शुद्धा करने लायक, लीन होने लायक तो एक मेरा आत्मा है। वो भी अखंड भेद, उसमें भी अगर खंडर भेद का वो कर लिया नहीं तो गया। अखंड भेद आत्मा जानने लायक है। शास्त्र परमात्मा जानने लायक है, ज्ञाय देव जानने लायक है। અહીં તો કહે છે પૈસા આવ્યા તે મારું જ્ઞાન ને હું જ્ઞાયક એમ નથી। જાણવાની પર્યાય મારી છે, તેથી હું જ જ્ઞાય છું, હું જ જ્ઞાન છું અને હું જ જ્ઞાયક છું। જ્ઞાયક એવા મારામાં પરનું જ્ઞાયપણું છે જ નહીં। જ્ઞાયક એવા મારામાં अपने में पर का ज्ञेयपणा है ही नहीं, पर का जानना वो स्वभाव में है ही नहीं। व्यवहार जानेलो प्रयोजन तो है, અહીં કે व्यवहार जाने वाला नहीं। व्यवहार की बात अलग होती है, निश्चय की बात अलग होती है। वहाँ व्यवहार बताया, जानेला प्रयोजन सवितुर दशा आ गई, जानता है थोड़ा वितराग भाव है, थोड़ा राग भाव है, पांचवा वर्त आदि का भाव आता है, ठीक है। वो भी दोष है, वो गुण नहीं है। कोई गुण नहीं है, जनित जाता है, जानने लायक नहीं है। चारित्र का दोष है। हाँ, दोष को जानने जैसी चीज नहीं है। निर्दोष परमात्मा को जानो, दोष टल जाता है, आपो-आप दोष निकल जाता है। ये गुरुदेव ने तो न्याय कर दिया है, ऐसी बात निकाली है। मूर्ति दिगंबर नहीं जानते थे, आप मूर्ति दिगंबर है, नहीं जानते थे कुछ। समय साथ जाना ही कहा था, समय साथ जाना ही कहा था। हाँ, समय साथ कोई मानता ही नहीं था। आपका शास्त्र आप पढ़ता ही नहीं था। बोलो, ये पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, बोलो। हाँ, ये अज्ञानी के लिए तो समय साथ लिखा है, अप्रतिभूत जीव को समझाने के लिए मैं शास्त्र लिखता हूँ, ऐसा लिखा है। नव तत्व का स्वरूप है। और उस समय लोग क्या करते हैं, समाचार वगैरह तो जो है ना, तो क्या साधुओं के पढ़ने का ग्रंथ है, सामान्य ग्रंथ के पढ़ने का ग्रंथ ही नहीं पढ़ना चाहिए। और वहाँ शुरू में लिखते हैं प्रतिबुद्ध को जो है तो समझाने के लिए मैं शास्त्र। प्रतिबुद्ध का मतलब तो यह जो अज्ञानी है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, इसके लिए तो लक्षण। हाँ, उसको उनके लिए लिखता हूँ ये ग्रंथ। बोलो, उल्टा पुल्टा हो गया। अब भी है ना, अब भी जो है तो कई आचार्य कहते हैं कि स्वाध्याय जो है तो गृहस्थ को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आज भी कह रहे हैं, आज कह रहे स्वाध्याय, आज नहीं कह, आज कह रहे हैं गृहस्थ को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।
ये कि आप जानोगे तो उनकी पूछ कैसे होगी, आप सही बात को समझने लग जाओगे। बस वही बात आप सही बात को समझने लग जाओगे, पोल खुली हो जाएगी, पोल खुलने लगेगी। इसलिए प्रश्न किया गया स्वाध्याय जो है, तो ये तो मुनि के और गृहस्थ के दोनों के आवश्यकों में स्वाध्याय बताया है। स्वाध्याय का निषेध कैसे करते हैं? हाँ, षटावश्यक में है, षटावश्यक के अंदर है, मुनि के भी षटावश्यक में है, गृहस्थ के भी षटावश्यक के अंदर स्वाध्याय तो ऐसी है, तो दोनों के षटावश्यक में। तो उसको कैसे निषेध करते हैं? बराबर बोलना चाहिए, बराबर कहना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। जयपुर में मेरा विद्यासागर जी महाराज से मेरी बातचीत हुई। विख्यात और रति प्रभात कषाय योग विख्यात को बंद का कारण नहीं मानते। हाँ, विख्यात को बंद का कारण नहीं मानते। तो जब मैं और संतोष कुमार जी झांझरी जयपुर में प्रवचन करते हैं, वो दोनों के दोनों ही थे। अच्छा, बात हुई उनसे, तो संतोष भाई में दोनों ही थे, दोनों। जयपुर में हुई बात, जयपुर में। हाँ, तो उनसे छात्र बंद का कारण नहीं है, तब कैसे नहीं है? तो उनको जो है तो अपने 6 डाला वगैरह के प्रमाण दिए। आर्ष वाक्य लाओ, ये तो बाल पोथियां हैं, ये तो बाल पोथ, ये उनके शब्द हैं जो मेरे सामने कहे हैं उन्होंने कि आर्ष वाक्य लाओ, बाल पोथियां हैं। और जब उनको ये कहा गया कि मिथ्यात्व अध्याय की पहला कहा था, तो उन्होंने उसको भी जो है टालमटोल कर दी। और अभी मैं जाके आया हूँ, जब थोमन जी जो भी चतुर्मास हुआ था उनका 2 महीने पहले, तो वहाँ ये सुनने को मिला है कि वो तत्वार्थ सूत्र में भी परिवर्तन कर रहे हैं इस लाइन के आधार पर, क्योंकि इस लाइन से उनकी बात कटती है। तत्वार्थ सूत्र को तो कोई नाकारा करने के लिए हिम्मत कर नहीं सकता, इसलिए वो तत्वार्थ सूत्र में ही परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहे हैं, नया तत्व सूत्र। हाँ, इसमें कुछ चेंज करके करने की, जैसे इसमें तामर के अंदर जो है तो श्वेतांबरों ने 4 काव्य निकाल दिए हैं, निकाल दी है। उस तरह तत्वार्थ सूत्र में भी वो कुछ जो है तो परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये स्थिति है। बिल्कुल भय नहीं रहा कोई नहीं रहा। ये लोग भाई और जबकि इस वक्त ये माना जाता है कि चारित्र के मामले में विद्यासागर जी का संग सबसे ज्यादा अच्छा है, ये भी माना जाता है, ये भी माना जाता है कि चारित्र के मामले में और मुझे जितने जो है तो गिर गए हैं उतने वो नहीं, पर श्रद्धा के मामले में शायद सबसे ज्यादा गिरा हुआ संग उनका। हाँ, सबसे ज्यादा गिरा है। श्रद्धा ही सही नहीं है तो चारित्र, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो चारित्र कहाँ है? ऐसा आप जिसे समझदार में जाना चाहिए कि आप कहते हैं मगर तत्वार्थ सूत्र में मिथ्यात्व तो बंद का कारण लिखा है, इसका क्या कारण? ठीक कहा, तो कल लिखा है आर्षवाद के अलावा ये जो है ना, टोडरमल जी के, दौलत राम जी के, भूधरदास जी के, इनकी बातों को तो इनको तो वे कहते हैं कि सब बाल पोथियां हैं, बच्चों की लिखी हुई है, सराय के लोगों की लिखी हुई है, मुनियों का लिखा हुआ। कोई जो है ना संस्कृत का उसका वो लाओ, तो आर्षवाद के लाओ, तो आर्षवाद के लिए सिर्फ इतना ही बताया कि जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो वो इसमें मोक्ष शास्त्र के 6ठे अध्याय के जो बंद की जो है चातवारती प्रतिमान ये लाइन बताया, तो उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया। और अब 8 वर्ष पहले की बात है, 2 वर्ष पहले जयपुर में आए थे जबकि, और अभी जब जो है सो उनके थुवन जी के अंदर जो है सब उसके बुंदेलखंड की यात्रा के लिए गया था, तो थुवन जी में हो तो सुनने में मिला, उनसे तो मेरी बातचीत नहीं, पर सुनने में मिला कि वो जो है मोक्ष शास्त्र को ही चांदखेड़ी में अपनी 4 प्रतिमा है श्रीमन भगवान की, उनका लेख ही मिटा दिए बिल्कुल। उसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ जो है तो कानजी स्वामी के जो है ना से जो है ये प्रतिमाएं मैं स्थापित करा रहा हूँ। उन्होंने उसके लोगों ने उसको मिटवा करके और उसके ऊपर जो है ना तो दूसरे विमल सागर जी, धर्मसागर जी महाराज के, विमल सागर जी, भरत सागर जी के जो है ना चांदखेड़ी में 4 प्रतिमा है अपने श्रीमंत भगवान की, जिसने लिखाया था ना बेचारे को, उसका क्या हाल हुआ? वो उसके परिवार वालों ने ऑब्जेक्शन किया तो उसको लाठियों से मारने को तैयार हो गए। श्रीमंदर को कुंकुम को नहीं मानते नहीं, उनके श्रीमंत भगवान तो भी लिखा हुआ है, पर प्रशस्ति में ये जो लिखा हुआ है कान्जी स्वामी से या उसकी जो है ना उनके उससे श्रीमंत भगवान तो लिखा हुआ, तो हमको बहु मारा है, लेकिन यहाँ भी ये प्रतिमा है, पर फिर दिन में देखा तो मुझे सारा घोटाला हो गया, बदला उसको, तो बदला चौड़े बदला हुआ दिखता है कि प्रशस्ति मिटा करके दूसरी प्रशस्ति लिख दी गई है उसके ऊपर।
क्या भय नहीं है पाप का, पाप का ज्ञान और कर्म का बंद होता, भय नहीं है पाप का। अरे और उस व्यक्ति से भी मेरी बात थी जो उन मूर्तियों को खरीद के लाया था, जो पंच कल्याणक में उन मूर्तियों को ले जा करके पंच कल्याणक करा करके प्रशस्ति लिखवा करके लाया था, उस व्यक्ति से भी मेरी बातचीत हुई और वो कहता है कि करूं क्या। और वो वहां का वो था, चांदखेड़ी का मंत्री रहा हुआ था, मंत्री के मंत्रित्व काल में वो जो है मूर्तियां प्रतिष्ठित होकर के आकर रखी गई थी। अब वो मंत्री से हट गए, उनसे मेरी बातचीत हुई, बोलते हैं कि 100% फैक्ट है, हमने ऐसा सुना है, ये देखने में आया है। बोलते इसमें है ही क्या, तो मूर्तियां तो मेरी जो है तो वो प्रतिष्ठित करा के लाई, पर करूं क्या मैं कहता। इसलिए मेरी भी श्रद्धा जो है तो चांदखेड़ी तो जाओ दर्शन करिए, उसके बाद जो मंत्री रहा था उसके बाद कुछ उसका उद्धार वो होना चाहिए, इससे श्रद्धा हट गई। इसके बेकार की बातों में अज्ञान में क्या होता है, क्या कर लेता है, मर्यादा नहीं है, ज्ञान की मर्यादा नहीं है। आठ बताया छठा अधिकार के विद्या तो मन का कारण है, तो भी अधिकार जो है नहीं मानता, नहीं बस उसको फिर उड़ा कोई। जब चौथे पुलिस स्थान में बताया कि चारित्र नहीं होता है, लीनता नहीं होती है, तो वहाँ पे करेल में तो और लेडीजों को बहुत पैसा लगा है, ये क्या बोलते हैं, लालाराम शास्त्री पंडित था। तो फिर वो बोले वो कि कुनकुन आचार्य को नहीं लाना और अमृतचंद आचार्य को नहीं लाना, टोड़मल जी को नहीं लाना, इनके अलावा तुम दिखाओ कहाँ लिखा है वो। कुनकुन आचार्य को नहीं लाना तो अपने आप को दिगंबर कैसे कहते हैं? आप दिगंबर कहने का क्या अधिकार रखते हो? क्या कुनकुन आचार्य को नहीं लाना, कुनकुन आचार्य को नहीं लाना तो फिर अपने आप को दिगंबर कहने का क्या अधिकार रखते हो? कोई अधिकार नहीं। बराबर बराबर है, गेट आउट। फिर तो ये है कि गेट आउट करना चाहिए, कपड़ा पहन ले, कपड़ा पहनाना चाहिए। कुनकुन आचार्य को नहीं, पंडित लाल जिन्होंने कुनकुन आचार्य पर पीएचडी की है, वो लाल बहादुर शास्त्री जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने कुनकुन आचार्य के समय तक फूलचंद जी ने, कैलाश जी सिद्धांत शास्त्री ने, उन्होंने और भी कई पंडितों ने बहुत से लेख निकाले इनके ऊपर कि विचार से बंद नहीं होता, इसके बारे में जो है उनके के लिए देखिए ये उदाहरण देखिए, ये उदाहरण देखिए, ये देखिए बहुत बहुत लिटरेचर निकला है। बराबर नहीं चलेगा, नहीं उसका चलेगा नहीं। समाज चलेगा, अभी तो चलेगा साहब। कोई भी जो है ना, तो इतने ऊंचे लेखों को कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा तो समझना नहीं, और उन जो साधारण बात होगी और वो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद प्रतियां अलग अलग मिलेंगी, तत्वार सूत्र दो अलग अलग लिखे हुए मिलेंगे, एक ये भी वो मिलता है, एक ये भी वो मिलता है, कुछ समय तक वो चलेगा, बाद में दूसरी विचारधारा शुरू हो जाएगी। कभी तक ये लगेगा कि दोनों तरह की उपलब्धि को क्या होगा, अब जो भी आगे क्या होगा देखो, अपन दोस्त से क्या लगा ગાયક એવા મારામાં પરનું જ્ઞેયપણું છે જ નહીં। પાનો 170 બીજો પાઠ, તત્વદૃષ્ટિ બહુ સૂક્ષ્મ છે ભાઈ। અરે અનંત કાળથી એને પરનો, નિમિત્તનો, રાગનો અને પર્યાયનો અભ્યાસ કર્યો છે। એને પોતાના જ્ઞેય માન્યા છે પરને, પણ જ્ઞાન, જ્ઞાતા, જ્ઞેય બધું જ હું છું એમ અંતર્મુખ થઈ અભેદનો અભ્યાસ કર્યો નથી। પણ બાપુ જન્મ મરણ રહિત થવાની ચીજ તો આ અનંત પુરુષાર્થથી જ પ્રાપ્ત થાય છે। આ શાસ્ત્ર છે તે જ્ઞેય છે ને તેને જાણનારો હું આ જ્ઞાયક છું। અહીં કહે છે એમ વસ્તુ સ્વરૂપ નથી, शास्त्र मारा ज्ञेय नहीं है। कई विचार कारण के मारी ज्ञान पर्यायમાં જેવું શાસ્ત્ર છે તેવું જ જ્ઞાન આવ્યું છે, તો પણ તે કઈ જ્ઞેયને શાસ્ત્રને કારણે નથી આવ્યું, પણ મારી જ્ઞાનની પર્યાય સ્વયં સ્વતઃ निज सामर्थ्य ज ते रूपे जानवा रूपे परिणत थई छे। तेने परथी शास्त्रथी शुं संबंध छे? एने परनी साथे ज्ञेय ज्ञायक संबंध पण नथी, तो पछी शास्त्रथी ज्ञान थयुं ए तो क्यांय दूरनी वात छे। हाँ, पण पर साथे ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहेवामां आव्यो छे ने, ए संबंध तो व्यवहारे कह्यो छे। निश्चय थी तो 6 द्रव्यों ज्ञान मारी पर्याय में माराथी थयुं छे। 6 द्रव्यों हयाती ने कारणे थयुं नथी। जो
છ દ્રવ્યો છે, પણ છ દ્રવ્યોની હયાતીને કારણે મારું જ્ઞાન થયું નથી, પણ મારી પર્યાયની તાકાતથી એ જ્ઞાન થયું છે. ભાઈ, આ તો ભગવાનની વાણીમાંથી નીકળેલું એકલું અમૃત છે. આહા, અહો દિગંબર સંતોએ જગત સમક્ષ આવી વાત મૂકીને પરમ અમૃત રેલાયું છે. આવી વાત બીજી ક્યાંય છે નહીં, દિગંબર સંતો સિવાય અલાવા ક્યાંય કઈ નહીં. આ કહે છે જે છ દ્રવ્યો છે તેનું જે જ્ઞાન થયું છે તે જ્ઞાન મારું જ્ઞેય છે. છ દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય નહીં, છ દ્રવ્યોના જાણપણા માત્ર હું નથી. એમ એકલા છ દ્રવ્યોનું જે જ્ઞાન થાય છે ને એ મારું જ્ઞેય નથી. પોતાને જાણતા છ દ્રવ્યો જણાઈ જાય એવી જ્ઞાનની પર્યાય મારું જ્ઞેય અલગ વાત, પણ એકલા છ દ્રવ્યને જાણનાર જ્ઞાનની પર્યાય એટલું જ્ઞેય મારું નથી. એમ હા, આત્માને જાણતા છ દ્રવ્યો જણાઈ જાય એ જ્ઞાનની પર્યાય પોતાની બરાબર. પોતાને જાણ્યા સિવાય પરને જાણે એ જ્ઞાન તો આપનું છે ને, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. પ્રશ્ન, જ્ઞાનની પર્યાય પર જ્ઞેયના કારણે થઈ છે ને? એમ કે જ્ઞેય છે તો જ્ઞાન થયું છે ને? એમ આ શાસ્ત્ર છે તો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થાય છે ને? સમાધાન, ના, એમ નથી. એ જ્ઞાન તો પોતાની પર્યાયના સામર્થ્ય થયું છે. 13મો ન્યાય છે ને, જ્ઞાનની પર્યાય સત છે. તો જલ્દી બોલી દેવું છે ને, કે તને ખબર છે કે ભાઈ હમણાં આગળ થઈ જશે બોલવામાં. ચોખ્ખો શબ્દ પાઠ છે. પોતાની પર્યાયના સામર્થ્ય થયું છે જ્ઞાન, કઈ પરને કારણે જ્ઞાન થતું નથી. અને તેથી પોતાની પર્યાય પોતાનું જ્ઞેય છે. 12મી ગાથામાં વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજન કયો છે, પણ એનો અર્થ એ છે કે તે પ્રકારની જ્ઞાનની પર્યાય સ્વયં પોતાથી થાય છે. પર્યાય સત છે. રાગ છે માટે રાગનું જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. શાસ્ત્ર છે માટે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. જ્ઞાન જ્ઞાનથી થાય છે ત્યારે શાસ્ત્રને નિમિત્ત કહેવામાં આવે. એટલું જ બસ. વ્યવહારનો જે રાગ છે એવું જ તેનું જ્ઞાન પોતાની પર્યાયમાં પોતાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાનનો એવો જ કોઈ સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ છે, એને પરની કોઈ અપેક્ષા નથી. માટે પોતાની પર્યાય જ પોતાનું જ્ઞેય છે, પણ તે વ્યવહાર રાગ જ્ઞેય નથી. આ તો ધીરાના કામ બાપુ. ભગવાનની વાણીને સમજવા માટે પણ ધીરજ જોઈએ. ઉતાવળે કાંઈ આંબા ન પાકે. પોતાની જ્ઞાનની પર્યાયમાં જે 6 દ્રવ્યો જાણવામાં આવે છે, પણ તે 6 દ્રવ્યો છે તો અહીં જ્ઞાન થયું છે એમ નથી. પોતાની જ્ઞાનની પર્યાય જ સતઃ, જો સત હેતુ એવી પ્રગટ થઈ છે, અને તે પર્યાય જ પોતાનું જ્ઞેય છે. જો કળશમાં છે કે નહીં, કે પોતાના જીવથી, હવે કળશનો આધાર આપે છે મૂળ રાજમલજીના સાબના, પોતાના જીવથી ભિન્ન 6 દ્રવ્યોના સમૂહના જાણવા માત્ર હું નથી. એનો જાણવું એટલો જ મારો સ્વભાવ નથી. શું કીધું? હા, કે 6 દ્રવ્યોના જાણવા માત્ર હું નથી. મતલબ કે મારી પર્યાયના જાણવા માત્ર હું છું, કેમ કે સર્વસ્વ મારામાં છે. 6 દ્રવ્યને જાણે એટલો હું નથી, પણ જ્ઞાન આત્માને જાણે ને એ જ્ઞાન જ્ઞાનને જાણે એવું હું છું. બધું મારામાં છે. જ્ઞાન પણ અહીંયા ને જ્ઞેય પણ અહીંયા. જ્ઞાન અહીંયા ને જ્ઞેયમાં એમ ન હો, એમ કે છે. એના ભાવાર્થમાં આમ કહ્યું કે, ભાવાર્થ આમ છે કે હું જ્ઞાયક અને સમસ્ત 6 દ્રવ્યો મારા જ્ઞેય એમ તો નથી. જુઓ છે અંદર ભગવાન પદ પરમેષ્ઠી મારા તો નથી, પણ તે મારા જ્ઞેય છે એમ પણ નથી. પદ પરમેષ્ઠી મારા તો નહીં, પણ એ મારા જ્ઞાનમાં જ્ઞેય ને હું એનો જાણનાર એમ પણ નથી. એ મારું જ્ઞેય નથી.
એ જ્યાં જ્ઞેય નથી ત્યાં તો આત્મજ્ઞેય થઈ જાય છે. હું પરમાત્માને જાણતો નથી તો આ પરમાત્મા જણાઈ જાય છે. હા, એ બાહુબલીની સામે જોઈને વિચારે છે કે હે પરમાત્મા, તમે જણાતા નથી, મને તમારું જ્ઞાન જણાય છે, અરે આત્મા જણાય છે. ત્યાં તો અહીંયાથી વ્યાવર્ત થઈ જાય, જ્ઞેયથી પાછું ફરી જાય ઉપયોગ અને અંદરમાં જાય. ત્યારે પોતાને સમ્યક દર્શન થયું ત્યારે પ્રતિમાજીને નિમિત્ત કહેવામાં આવે. અહીંયાથી પાછો ફરીને અંદરમાં ગયો, ઊભો છે એની પ્રતિમાની સામે, પણ અંદરમાં ઉપયોગ ગયો, અનુભવ થયો, તો પ્રતિમાના દર્શન કરતા સમ્યક દર્શન થયું એવો ઉપચાર આવે છે. ઉપચાર આવે છે, થાય છે પોતાથી. તો એ વખતે નિમિત્ત છે, શાસ્ત્ર હોય કે દેવ હોય કે ગુરુ હોય, તો એનાથી સમ્યક દર્શન થયું પ્રતિમાજીથી. પ્રતિમા પણ સમ્યક દર્શનમાં નિમિત્ત છે, શાસ્ત્ર પણ નિમિત્ત છે અને અર્યન દેવ પણ નિમિત્ત છે. એમ કહેવાય પોતે કામ કરે તો, काम न करे तो निमित्त भी नहीं है, निमित्त नहीं कहवाय. निमित्त तभी कहलाता है जब कि काम हो तो उपादान काम करे तो निमित्त पर आरोप आता है कि शास्त्र से ज्ञान हुआ, ये प्रतिमा का दर्शन से ज्ञान हुआ. ज्ञान हुआ तो कहकर, इधर ज्ञान नहीं हो तो क्या है, कुछ नहीं. ભગવાન પંચપરમેષ્ઠી મારા તો નથી પણ તે મારા જ્ઞેય છે એમ પણ નથી. કેમ કે અહીં પોતાની પર્યાયમાં પંચપરમેષ્ઠી સંબંધી જે જ્ઞાન થયું છે તે તેમનાથી થયું નથી, પણ પર્યાયની તત્કાલિક યોગ્યતાથી સામર્થ્ય થયું છે. પર્યાય સત, તેથી પોતાની પર્યાય જ પોતાનું વાસ્તવિક જ્ઞેય છે. હા, સદજ્ઞેય છે. આ પ્રમાણે બહારમાંથી દ્રષ્ટિને અંદર સંકેલી લીધી છે. એ તો પછી પોતાના માં જ્ઞેય જ્ઞાન જ્ઞાતા ત્રણ ભેદ પણ કાઢી નાખશે. અહીં તો પ્રથમ પર જ્ઞેય ને હું જ્ઞાયક છું એવી ભ્રાંતિ મટાડી છે. પછી આ ભ્રાંતિ જ છે. પછી જ્ઞાતા જ જ્ઞાતા છે, જ્ઞાતા જ જ્ઞાન છે ને જ્ઞાતા જ જ્ઞેય છે એમ કહેશે. અહો, સંતોએ માર્ગ એકદમ ખુલ્લો કરી દીધો છે. વાહ સંતો વાહ, कितना बहुमान करते हैं संतों का गुरुदेव. दिगंबर संतों की बात कोई अलग है. हो गया टाइम हो गया.